عبده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، قرآن کی تفسیر کا یہ سلسلہ اور سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو تزکیہ نفس کی کلاس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور ہمارا پڑاؤ پچھلے ہفتے آیت نمبر 24 پہ تھا۔ آیت نمبر 24 کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ نعم، فقرئ مخلصين ومخلصين، ففي القراءة كلاهما موجود، فلأجل هذا أولا قرأت مخلصين، لم يكن خطأ هذا حسب القراءة۔ یعنی یہ سب جو ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی قراءت جو ہے دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، تو دونوں قراءتیں ہیں۔ تو آج اس آیت کے اسی ٹکڑے پر گفتگو ہونی ہے، بات ہونی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے نفس کا تزکیہ ہے اسی کے تعلق سے آج آپ کے سامنے بات ذکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ دو ٹکڑے جو ہیں اس آیت کے اندر، ایک پہلا ٹکڑا آج کی تفسیر کا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور دوسرا ٹکڑا ہے إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تو پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کذالک، یہ جو اشارہ ہے یہ تو آپ نے جو ہے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ذالک یہ اسم اشارہ ہے عربی زبان میں، تو کذالک یہ ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس اشارے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پہلے والی آیت کی، یعنی اسی آیت میں اس کے پہلے والے ٹکڑے کی طرف ہمیں جاننا پڑے گا اور اس کو پھر سے ہمیں پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اشارہ تو اسی کی طرف ہے۔ تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اس سے پہلے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ یقیناً اس عورت نے بڑا پکا ارادہ کر لیا تھا برائی کرنے کا یوسف کے ساتھ،
लक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, और यूसुफ के दिल में भी ख्याल गुजरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख्याल गुजरा, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब के बुरहान को, दलील को ना देख लेते तो इस बुराई में वाक़े होने का डर था। ये जो बात जिक्र की गई है इससे पहले इसी आयत के अंदर उसी की तरफ इशारा है कि कज़ालिका, यानी जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्रूफ दिखाया, उन्हें दलील दिखाई, उनके जो है दिलो दिमाग में ये बात बैठाई कि ये गलत है और ये जो है जायज नहीं है, ये हराम कारी है, ये बेहयाई है और हमें इससे महफूज रहना है, ये जो सारी चीजें थी उसी की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जो है ऐसे ही वकज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु, हमने ऐसे ही किया, हमने उन्हें ये रोशनी दिखाई, हमने उन्हें ये जो है प्रूफ दिखाया, ये बुरहान दिखाया हमने। क्यों दिखाया हमने? उसी बुरहान, उसी प्रूफ, उसी दलील की तरफ ये इशारा है कि हमने दिखाया। क्यों दिखाया? वकज़ालिका, वकज़ालिका, गौर कीजिएगा, वकज़ालिका, फिर उसके बाद क्यों दिखाया उसकी इल्लत है, उसका रीजन है, उसका सबब है, लेकिन पहले क्या है? वकज़ालिका, वकज़ालिका, और हमने ऐसे ही दिखाया, हमने दिखाया उनको। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बुराई से, बुराई की इस दावत से, उसके सारे असबाब मुहैया हो जाने के बावजूद भी महफूज रह गए, ये अल्लाह ताला की हिफाजत थी। ये पहला पॉइंट है मेरे भाइयों, नोट कीजिएगा, जो आगे के टुकड़े से भी ये बात मालूम होती है। ये क्या है? खालिस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चीज, और इसमें हमारे नफ्स का तज़किया है। हम में से हर कोई ये चाहता है कि बुराइयों से महफूज रहे और हमारा परवरदिगार हमें बुराइयों से महफूज रखे, दूर रखे। बुराइयों से बचाने वाला वही है, वरना इंसान का नफ्स भी है, शैतान भी है, और दुनिया के फितने हैं। ये दुनिया में इतने सारे फितने हैं जो उसे बुराइयों की तरफ दावत देते हैं। इन सब की मौजूदगी में अगर उसके नफ्स को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। ये हर इंसान को समझना है, ये मुझे भी समझना है, ये आपको भी समझना है मेरे भाइयों और मेरी बहन। ये है नफ्स का तज़किया। याद रख लो इस बात को कि हम चाहें कि खुद से बचा लें अपने आप को, नहीं, नहीं मेरे भाइयों, जब तक अल्लाह ताला की ताईद ना हो, उसकी तरफ से मदद ना हो, और जब तक अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और तौफीक हासिल ना हो, हम बुराइयों से बच नहीं सकते और हम नेकियों की तरफ दौड़ नहीं सकते, नेकियों पर कायम नहीं रह सकते, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न नहीं रह सकते, और बुराइयों से, बुराई के रास्तों से और बुराइयों की तरफ दावत देने वाली चीजों से हम अपने आप को बचा नहीं सकते जब तक कि हमारे रब की तौफीक हमारे साथ ना हो। यह है पॉइंट, यह है सोचने की बात। अंबिया किराम को बुराइयों से महफूज कौन रखता है? अल्लाह तबारक व तआला रखता है।
اللہ ताला उनकी हिफाजत फरमाता है, उनको गुनाहों से महफूज रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है मासूम अनिल खता अरबी में, यानी गुनाहों से महफूज जो है। बड़े बड़े जो गुनाह होते हैं अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला इनसे महफूज रखता है। और यही हर मोमिन की शान भी होनी चाहिए कि वो बुराइयों से अपने आप को महफूज रखे। तो बुराइयों से अपने आप को महफूज रखने की जो ख्वाहिश है, जो चाहत है, इसको अगर अमली जामा पहनाना है तो अपने रब की तरफ रुजू करो। वही है जो हमें इससे बचा सकता है। याद रखिएगा, आजमाइश है पूरी दुनिया में, फितने हैं पूरी दुनिया में। नफ्स अपना है, नफ्स अम्मारा जो बुराइयों पर उभारता है। शैतान अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ हमें बुराइयों की तरफ दावत देता है और बुराइयों पर चलाने की कोशिश करता है। और जो इंसानों की जिल्द में, इंसानों की खाल में शैतान मौजूद है, ये इंसानी शैतान भी मेरे भाइयों और बहनों पूरी कोशिश करते हैं कि हमें सीधे रास्ते से हटा करके बुराई के रास्ते पर चला दे, उस पर गामजन कर दें। तो हमको इन सब से बचाने वाला कौन है? खास तरीके से शैतान जो है हमारा अज़ली दुश्मन है, शुरू से ही वो हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है। शुरू से ही, जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, यही मतलब है अज़ली का। ये मतलब नहीं है कि जो है हमेशा, नहीं, जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और सजदे का हुक्म दिया गया और सजदा न करके जो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से रुसवा करके इसे निकाला गया है, तो उसका बदला और इस दुश्मनी को वो आदम और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ निभाता जा रहा है। उस शैतान से हमारी हिफाजत सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है उसका, वो है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में चले जाएं। याद रखिए, बुराई से अगर आप महफूज हो जाते हैं, बुराई से बच जाते हैं, तो ये आपका अपना कमाल नहीं होता, बल्कि ये खालिस अल्लाह ताला की तौफीक होती है। इसलिए अपने उस रब का शुक्र अदा करें जिसने आपको बहुत सारी गंदी आदतों और जो है गंदे कामों से, बुराइयों से महफूज रखा है। उसका शुक्र अदा करें, उसने तौफीक दी है तो ये चीज हासिल हुई है। हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो, हमारा नफ्स इतना ज्यादा बुराइयों की तरफ ले जाने वाला कि अगर जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये शरीयत न नाजिल हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गाइडलाइन ना हो और उसकी तरफ से तौफीक ना हो, तो बुराइयों का जो सैलाब है और बुराइयों का जो तूफान है, ये तूफान, ये सैलाब इतना ताकतवर और पावरफुल भी होता है कि हमें भी अपने साथ बहा ले जाएगा। वो तो सिर्फ उस रब का करम है कि उसने महफूज रखा है, उस रब का करम है। उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मेरे भाइयों, अपने रब के शुक्र गुजार बनो। ये बात थी। वकज़ालिका, फिर क्या कहा, लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फहशा, ताकि ले नसरिफ, लाम इसको कहते हैं लामुत तालील अरबी ज़बान में, यानी इल्लत बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए इसको इस्तेमाल किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये सब इसलिए किया और वहाँ उनको जो है दलील, बुरहान और जो है रोशनी जो उन्हें दिखाई और उनको उनके दिल में जो अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह की याद को बैठाया, और ये सब जो है सबब बने कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम बुराई से अपने आप को महफूज रख सके। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सब क्यों, लिनस्रिफ अन्हु अस्सुअ, ताकि हम उनसे दूर करें,
लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फहशा, लिनस्रिफ, लाम तो हमने बता दिया, उसके बाद नस्रिफ है, ये सरफ यस्रिफ अरबी में, सरफ यस्रिफ के असल माने होते हैं अन्नक़्लु मिन मकानिन इला मकानिन आखर। अरबी में क्या कहते हैं इसको? अन्नक़्लु मिन मकानिन इला मकानिन आखर, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को मोड़ देना, किसी चीज के धारे को मोड़ देना, ये जो है अरबी ज़बान में सरफा कहलाता है। तो सरफा के माने मोड़ने के होते हैं। कज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सुअ, कि ये इसलिए किया हमने कि हम चाहते थे कि हम यूसुफ से बुराई और बेहयाई को मोड़ दें, यूसुफ से बेहयाई और बुराई को जो है दूर कर दें, दूसरी जगह भेज दें, दूसरे लोग उसमें मुब्तला रहे, लेकिन यूसुफ हमारा बंदा, अल्लाह ताला का फरमान, हमारा बंदा ये इसमें मुब्तला ना हो और इस मुसीबत से, इस परेशानी से और इस बुराई से वो बचा रहे, उसके लिए हमने किया। तो किसने बचाया मेरे भाइयों यूसुफ अलैहिस्सलाम को? उनके रब ने बचाया। गुनाह का पूरा सामान तैयार हो जाने के बावजूद ऐसे माहौल से अपने आप को बचाना और भागना वहां से, ये सब किसने किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम के रब ने किया। वकज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फहशा, अल्लाह ताला ने कहा कि हम दूर करें, हम मोड़ दें इस फितने का जो है, ये फितना जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसके धारे को हमने मोड़ दिया, हमने जो है इसको दूसरी तरफ कर दिया, यूसुफ के करीब नहीं आने दिया। बुराइयों का ये खंजर और बुराइयों का, बेहयाई का ये तीर, बजाय इसके कि यूसुफ के सीने को आके छलनी कर दे, हमने इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया। इधर नहीं आना है, यहाँ प्रोटेक्शन है उनके रब की तरफ से। ये पॉइंट नोट कीजिए, जब आपके पास आपके रब की तरफ से प्रोटेक्शन होगा मेरे भाई, हिफाजत होगी, तो बुराइयों के ये जो है बुराइयां और बेहयाइयां, इसका जो है ये जो शैतान फायर करता है कि आकर के हमारे दिलो दिमाग में ये समा जाए, अल्लाह तबारक व तआला इसको जो है दूसरी तरफ मोड़ देता है और हमें बचा लेता है। ये वो ढाल है अल्लाह का जिक्र, ये वो ढाल है अल्लाह ताला की याद, ये वो ढाल है मेरे भाइयों, जो हमको बुराइयों से जो है बचाती है, प्रोटेक्शन हमको हासिल होता है बुराइयों से। अल्लाह की याद में रहिए, अपने रब का जो है, अपने रब के जो है इल्म, और वो हमेशा देख रहा है और हम उसकी निगरानी में है, इस एहसास को अपने अंदर पैदा कीजिए, बल्कि इस एहसास को अपने अंदर जो है बढ़ाइए। जितना ये एहसास बढ़ेगा बुराइयों का धारा, उतना ही आपसे दूसरी तरफ मुड़ जाएगा और उतनी ही आपको हिफाजत हासिल होगी आपके रब की तरफ से, जैसे किसको हासिल हुई? यूसुफ अलैहिस्सलाम। कज़ालिका, याद रखिए, कज़ालिका लिनस्रिफ अन्हु सुअ वल फहशा, यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, अस्सुअ वल फहशा, सुअ वल फहशा, सु सय्युन सुउन, ये लफ्ज भी आप अरबी में पढ़ते रहते हैं, और अल फहशा का लफ्ज भी कुरान में बड़ी कसरत से आता है। इन दोनों के अंदर जो है ये जो मीनिंग है, असल मीनिंग जो होती है और इसका जो इस्तेमाल है, मैं चाहता हूं कि इसको भी आपके सामने थोड़ा क्लियर करूं, क्योंकि ये दो लफ्ज आया हुआ है, सिर्फ बुराई की बात नहीं आई हुई, ये दो लफ्ज आया हुआ है, अस्सू वल फहशा। अस्सू ये जो है
अरबी जबान में साआ यसू कहते हैं, उसी से असू लफ्ज इस्तेमाल होता है। और ये जो है हर वो चीज जिससे इंसान को परेशानी हो, जिसकी वजह से इंसान की हैसियत, उसके मर्तबे और उसकी शोहरत, उसकी इज्जत, ये सब चीजें जो है इंसानी जिंदगी को जिससे भी परेशानी हो सकती है, वो सब की सब सू में दाखिल है। इसीलिए अब हम इसका तर्जमा उर्दू में बुराई कर लेते, सिन जो आप इंग्लिश में कर लेते। बुराई जो है, बुराई, कोई भी बुराई, चाहे इसका ताल्लुक इंसान की सेहत से हो, इंसान की दुनियावी जिंदगी से हो, चाहे इसका ताल्लुक उसकी समाजी जिंदगी से हो, चाहे उसका ताल्लुक उसकी जो है घरेलू जिंदगी से हो, किसी भी तरह की बुराई जिससे इंसान को परेशानी हो सकती है, इसे अरबी में सू कहा जाता है। इसीलिए ज़िना भी एक बुराई है, बदकारी एक बुराई है, ये भी इसमें दाखिल है। कदालिका लिनस्रिफ अन्हु सुआ। तो सुगुन के लफ्ज में अल-फ़ाहिशा जो बाद में कहा गया वो भी दाखिल ही है इसके अंदर, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है अरबी जबान में। हर तरह की बुराई के लिए जो इंसान की सेहत पर, इंसान की इज्जत पर बट्टा लगा दे, वो हर तरह की बुराई जो इंसान को उसकी आखिरत से दूर करे, उसके अल्लाह से दूर करे, उसके दीन से दूर करे और उसकी शोहरत और उसकी इज्जत को खाक में मिलाए, ये हर तरह की बुराई इसमें दाखिल है। अस्सू कहा, लेकिन साथ में क्या कहा, वल फाहिशा। अरबी जबान में फाहिशा कहते हैं, अरबी में फाहुशा कहा जाता है जब कोई भी चीज जो उसकी लिमिट है, वो लिमिट, जिस लिमिट में वो चीज अच्छी लगती है, उससे क्रॉस कर जाए, अपनी उस लिमिट को क्रॉस कर जाए और उसकी वजह से वो चीज फिर अच्छी नहीं लगती, उसकी बुराई की जाती है, उसकी तारीफ नहीं की जाती, क्योंकि उसने अपनी जो है अच्छाई की हद जो थी उसके लिए उसको क्रॉस कर दिया है, तो उसे अरबी ज़बान में फाहिशा कहा जाता है, फाहुशा कहा जाता है अरबी ज़बान। उसी से फाहिशुन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जिसने लिमिट को क्रॉस कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो लिमिट मुतय्यन की गई, उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, ये है फाहुशा का असल माना अरबी ज़बान। उसी से फाहिशा ये लफ्ज किसके लिए अरबी में इस्तेमाल किया गया है, फाहिशा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुरान के अंदर खास तरीके से ज़िना के लिए, हर उस बुराई के लिए जो इंसान की शहवत से ताल्लुक रखती है, जो इंसान की शर्मगाह से ताल्लुक रखती है, उसके प्राइवेट पार्ट से ताल्लुक रखती है। इन तमाम बुराइयों के लिए फाहिशा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फाहिश का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में। जी, तो इसे जो है आप नोट कीजिए। तो पहले सू कहा गया, उसमें सारी बुराइयां दाखिल थी, तो उसमें ये ज़िना भी दाखिल है उसके अंदर, लेकिन खास तरीके से फाहिशा कहा गया जो कुरान में तमाम बुराइयों के साथ खास तरीके से ज़िना की बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, उसके लिए कहा फाहिशा का लफ्ज, चूंकि यहाँ जो फितना था यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, वो फितना ये शहवत का फितना था, और शहवत का ये फितना मेरे भाइयों बड़ा शदीद होता है। ये पेट की भूख के फितने से भी कहीं बड़ा फितना होता है। अच्छे अच्छों के कदम फिसल जाते हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छों के कदम फिसल जाते हैं मेरे भाइयों, जहां इस तरह से गुनाह की दावत मौजूद हो और वो भी बदकारी के गुनाह की दावत हो,
تو شیطان زیادہ غالب آتا ہے اس میں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک پروٹیکشن نہ ہو، جب تک حفاظت نہ ہو، انسان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے فحشا، السوء والفحشا، دو لفظ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر سے دیکھیے، کہا وَكَذَلِكَ، كَذَلِكَ واو نہیں ہے شاید، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسے ہی یعنی جیسے ہم نے ان کو نشانی دکھائی، ہم نے ان کو جو ہے اپنی جو طرف سے اور ان کے دل کے اندر جو ہے ہم نے یہ بات ڈالی، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیکھنے کا جو احساس ان کے دل و دماغ میں تازہ کیا. یہ سب جو ہے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو، یعنی زناکاری اور بدکاری کی ذات کو جو ہے دور کر دے، اس کے دھارے کو کہیں اور موڑ دے. یہ حفاظت تھی اللہ تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام کے لیے. اتنا جو ہے مسئلہ حل ہو گیا. اب آخری بات کیا ہے اس میں؟ آخری ٹکڑا کیا ہے؟ انہو من عبادنا المخلصین، انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے، چوز جو ہے جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں چوزن، جو ہے ہمارے چنے گئے، ہمارے منتخب چنے گئے بندوں میں سے ہے. انہو من عبادنا المخلصین. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وہ بھی انا تاکید کے لیے جو آتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا سب کے لیے، اعلان کر دیا. کیا اعلان کر دیا؟ کہ یہ ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھا. 3 فائدے جو ہے اس کے، کتنے فائدے یہاں پہ؟ 3 فائدے. پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو چنا ہوا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے پروٹیکشن دیتا ہے. پہلی بات. میں یہ فائدے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم بھی اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا. یہ تزکیے کی کلاس ہے، تزکیے نفس کی کلاس ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی برائیوں سے محفوظ رہیں، ہم بھی جو ہے زناکاری بدکاری سے محفوظ رہیں، تو کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چن لے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور ہماری کوشش کیا ہوگی؟ رسول نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے. وہ جو ہے اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا لیا، بنا لینے کے لیے کوئی الگ سے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں کی. جنگلوں میں جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہمیں جو ہے عبادت کرتے رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا گیان حاصل ہو جائے گا. جیسے گوتم بدھ اور جو ہے مہاویر اور پتہ نہیں کن کن کے بارے میں آپ نے جو ہے سنا اور پڑھا ہوگا. تو یہ سب جو ہے، یہ سب ولی بننے کے لیے اسلام میں نہیں ہے. اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا نہیں پڑتا ہے. ولی بننے کے لیے دنیا میں رہنا پڑتا ہے، دنیا کے ان فتنوں میں رہنا پڑتا ہے. فتنوں کی اس جو ہے دنیا میں، ابتلاء و آزمائش کی اس دنیا میں رہنا پڑتا ہے. اور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے آپ کو اسے بچانا ہوتا ہے. تب جو ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب کرتا ہے اور وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، جو کوئی بھی بن سکتا ہے. اس کے لیے کوئی خاص شخص نہیں ہے کہ جو ہے وہی لوگ بن سکتے ہیں اور ہم نہیں بن سکتے. میرے بھائیوں، آپ سب لوگ اللہ کے ولی ہیں.
اور یاد رکھیے جب اللہ کے ولی ہیں، یہ دوسرا فائدہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ہی، اپنے خاص اور مخلص بندوں کو ہی، اپنے چنے گئے بندوں کو ہی برائی اور بدکاری سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کا ولی بنا لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے پروٹیکشن بھی حاصل ہو گئی ہے، حفاظت جو ہے حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا انہو من عبادنا المخلصین، یہ اس کی علت کے طور پر ذکر کیا ہے، گویا کہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے۔ یہ عربی زبان کی کا ایک قاعدہ ہے، عربی بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، یہ گرامر میں آتی ہے بات کہ یہ دونوں سینٹنس کے بیچ میں واو نہیں لایا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا ہے وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، واو نہیں لایا گیا ہے، بغیر واو کے ذکر کیا گیا۔ تو اس کی جو 5 جو ہے وجہیں ہوتی ہیں، 5 اس کے ریزن ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر دوسرا سینٹنس پہلے سینٹنس سے اٹھنے والے، پیدا ہونے والے سوال اور کویشچن کا جواب ہے اگر دوسرا سینٹنس، تو بیچ میں واو نہیں لایا جاتا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ یہ اس لیے کہ ہم اس سے برائی کو، بے حیائی کو ہٹانا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے رخ کو، اس کے دھارے کو موڑنا چاہتے ہیں، تو کیوں اے ہمارا رب تو کیوں ان سے برائی کو موڑنا چاہتا ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، تو جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اس لیے میرے بندوں، میری بندیوں، اس لیے کہ وہ میرے چنے گئے بندوں میں سے تھا، میرے چنے گئے بندوں میں سے ہے، جس کو ہم نے چنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا چنندہ ہوگا، چنا ہوا ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوگا، جس کو چوز کر لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اسے برائی سے اور بے حیائی سے محفوظ رکھے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی تیسرا فائدہ، یہی تیسرا فائدہ ہے اس کا، اور یہی ہم سب کے لیے اہم ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، اس قابل بنائیں کہ ہمارا رب ہمیں بھی برائیوں سے محفوظ رکھے، اس کی توفیق حاصل رہے، بے حیائیوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رب کا ہو کر کے رہنا پڑے گا، اس کا ہو کر کے رہیں گے، اس سے دعائیں کریں گے، اس سے التجائیں کریں گے، اس سے مانگیں گے، اس کے سامنے روئیں گے، گڑائیں گے، تو ہمیں بھی محفوظ رکھے گا۔ دعائیں تو کرنی ہے نا اس سے۔ یہ ہے انہ من عبادنا المخلصین۔ ایک دوسری قرات میں ہم نے آپ سے کہا کہ انہ من عبادنا المخلصین بھی آیا ہوا، یعنی ایک قرات میں اس کو کیسے پڑھا گیا ہے؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، یعنی جو مخلص ہوگا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے رب کا جو مخلص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا رب اس سے برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ مخلص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن بھی حاصل ہوگا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہی مخلص ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے وہی مخلص ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مخلص یہ اس میں فاعل، اور مخلص کو کہتے ہیں اس میں مفعول، یعنی جو اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے مخلص کر دے، سینسیئر کر دے، اپنے رب کا ہو جائے،
تو اس کا رب اس کو اپنا بنا لیتا ہے، وہ اس کا مخلص ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو چن لیتا ہے۔ جو رب کا ہوا رب اس کا ہوا۔ یہی میرے بھائیوں ہم انسانوں کی پوری کہانی ہے، اور یہی ہم انسانوں کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ہو جائیں، رب ہمارا ہو جائے۔ یہاں اس کو بھی نوٹ کیا ہوگا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ایک پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے گا، اس کی طرف اب اشارہ کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ انہو من عبادنا المخلصین۔ یہ نہیں کہا انہو من المخلصین یا انہو من المخلصین، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا انہو من عبادنا المخلصین، من عبادنا۔ صرف یہ بھی نہیں کہا کہ من العباد المخلصین، یہ بھی صرف نہیں کہا من عبادنا، یہ بھی نہیں کہا من عباد اللہ المخلصین، یہ بھی نہیں کہا من عباد الرحمن، جیسا دوسری جگہ آیا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، بلکہ یہاں کہا من عبادنا۔ عبادنا کیا مطلب؟ ہمارے مخلص بندے، ہمارے چنے گئے بندوں میں سے ہے، ہمارے چنے گئے بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارے، تو رب نے تو ان کو اپنا بنا لیا، اب ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے بارے میں کہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، تو ہمیں اپنے آپ کو مخلص بنانا پڑے گا، مخلص بنانا پڑے گا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالی ہمیں مخلص بنا دے گا۔ یہ ہے تو ہم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے، ورنہ دنیا کے سارے انسان بھی اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں مسلمان صرف اللہ کے بندے نہیں ہیں، انبیاء کرام رسول جو ہے، یہی جو ہے اللہ کے بندے نہیں ہیں، اولیاء ہی اللہ کے بندے نہیں ہیں، مومنین ہی اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہاں کا ہر انسان اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے کیا کہا؟ من عبادنا، ہمارے بندے، اپنے رب کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا۔ یہ نفس کے تزکیے کے لیے بڑی اہم بات اور بہت اہم پوائنٹ ہے آج کے درس میں۔ میرے بھائیوں، یہ پوائنٹ آپ لے کر کے جائیے آج کے درس سے، وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے ہو جاؤ، رب تمہارا ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کہ ہمارے خاص بندوں میں سے، ہمارے چنے گئے بندوں میں سے ایک ہے، رب کے ہو جاؤ، بس اتنی سی بات ہے، اور یہی تو چاہتا ہے ہر کوئی۔ میں چاہوں گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مثال سے اس کو واضح کرو، اور زیادہ واضح۔ کیا کرتا ہے یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، کیا کرتا ہے یہ انسان؟ کہیں کام کرتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، کہیں کوئی جاب ہے اس کا، وہاں پہ اس کا باس ہوتا ہے۔ ابھی جو اصل مالک ہے نا، وہ اس کا اونر ہے، اس کو چھوڑیے، جو صرف اس کے اوپر ہے مینیجر یا جو باس ہے، جو ٹیم لیڈر ہے، جو بھی جو ہے آپ کام دے دیجئے، کیا کرتا ہے؟ اس کے آگے پیچھے گھومنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے قریب ہو جائے۔ اتنی کوشش یہ انسان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کسی کے سیاہ و سفید کے مالک نہیں ہے میرے بھائی، ان کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے۔ وہ مالک ہے کسی چیز کے؟ ہرگز نہیں۔ اگر
मालिक यानी वो और भी थोड़ा और आगे बढ़े तो कोई जो है यानी अभी वजीर और जो है जो मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं या जो है चीफ मिनिस्टर कहते हैं या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जरा उनको छोड़ करके नीचे के लेवल में अगर कोई सिर्फ एमएलए एमपी बन जाता है तो उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और क्या है, थोड़ा उसके साथ जो है फोटो खिंचवा लेंगे। बड़े करीबी हैं इनसे, बड़े करीबी हैं, जाहिर करते रहते हैं कि हम बड़े करीबी हैं। और आजकल तो एक और भी ट्रेंड चल गया है लोगों का कि जहां बहुत सी गलत चीजें होती रहती हैं तो वहां पे लोग उलमा को खास तरीके से वहां स्टेज पे बुला करके थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं और खुद भी अपनी तस्वीरें जो है उनके साथ ले लेते हैं कि लोगों को पता रहे कि हम भी इनके साथ हैं और ये आलिम हमारे साथ, हमारी सारी बुराइयों में वो भी शरीक है, हमारे सारे गोरख धंधों में वो भी शरीक है, हमारे सारे जो है खयानतों और सारी बेईमानियों में ये भी शरीक हैं। और ये भी बड़े फख्र के साथ वहां जाकर के लिफाफों के लिए अपनी हाजिरी भी दे आते हैं। बड़ा अजीब मामला है। इन लोगों को जिनके हाथ में कुछ नहीं है उनसे करीब होने का इतना जो है दर्द सता रहा है, उनके होने का दर्द इतना सता रहा है, इतनी कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं उनके करीब होने के लिए, बड़ी कोशिश करते हैं, इनके पीछे लगते हैं, उनके पीछे लगते हैं कि किसी तरीके से हमारी मुलाकात करा दे। और उनके पास जाना भी इतना मुश्किल, किन किन जो है लोगों का सहारा लेकर के वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। काश ये इंसान थोड़ा सा ये समझ जाता कि जो असल इंसान के नफा नुकसान का मालिक है वो उसका रब है। इसका जो है 100वां हिस्सा भी अपने रब की तरफ अगर वो लौट जाता और ये एहसास पैदा कर लेता कि मेरा रब अगर मेरा हो गया तो मैं अपने रब का हो गया और उसका खास बंदा बन गया, तो दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बेका नहीं कर सकती और कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता अगर वो रब नहीं चाहेगा। उसकी हिफाजत मुझे हासिल हो जाएगी। लेकिन कभी इंसान ये नहीं सोचता, हमेशा क्या है, यही सब चीजें करता है। मैंने आपसे कहा कि अगर ये जितनी कोशिश ये दुनिया के लोगों के करीब होने की करता है अपने दुनियावी फायदे के लिए, थोड़ा बहुत कुछ हासिल करने के लिए, उसका 100वां हिस्सा भी अगर अपने रब के करीब होने की कोशिश करे तो फिर जो है उसकी जिंदगी का अंदाज ही बदल जाए और दुनिया दुनिया का इसकी जिंदगी का अंदाज भी बदल जाए मेरे भाई। लेकिन नहीं होता है, ये नहीं करते, अपने रब की तरफ नहीं लौटते, उससे जो है लौ नहीं लगाते, उससे नहीं मांगते, उससे दुआएं नहीं करते, कुछ नहीं जो है, जो असल मालिक उससे तो जो है दूर भागते हैं। और जो किसी चीज के मालिक, किसी चीज के मालिक नहीं, जिनका हाल ये है कि इन तक पहुंचने के लिए न जाने कितने वास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं उनको, कितने सोर्सेस इख्तियार करने पड़ रहे हैं। और यहाँ तो हाल ये है कि कुछ नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं, बस खुद जो है अपने रब की तरफ, आसमान की तरफ सर उठाइए। आपके दरमियान और आपके रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं, कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट अपने रब से लो लगाओ, उसके हो जाओ, किसी के बीच में कोई जरूरत नहीं है। अगर ये हो गया तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को सिक्योरिटी देता है, उनको अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखता है। आज हमारा हाल ये है कि हम चूंकि अपने रब की हिफाजत में नहीं है तो एक मामूली जो है हरकत से भी डर जाते हैं। थोड़ी सी जो है कोई जो है दरवाजे पे दस्तक हो जाए तो
दिल खौफ से, डर से भर जाता है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है मेरे भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास तो हमारे रब का प्रोटेक्शन है। हाँ, हमने तो किस पर एतमाद कर लिया है? सिक्योरिटी गार्ड पर कर लिया है। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड और इतने सारे जो है इतनी सारी सिक्योरिटीज, पता नहीं कितने प्लस जेड प्लस और कितने प्लस सिक्योरिटीज होती हैं ये, और इसके बावजूद भी हाँ, हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। इतनी सारी सिक्योरिटी ये दुनिया वालों की, और इसके ऊपर हम एतमाद करते हुए इसके पीछे पीछे भागते, इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। काश कि कभी हमने अपने रब की सिक्योरिटी हासिल करने की कोशिश की होती, अपने रब से कहते कि जरा मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए, जिसके हाथ में सब कुछ है और जिसकी सिक्योरिटी ऐसी है कि वो किसी को नजर भी नहीं आती है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कभी ये सिक्योरिटी का निजाम फेल हो जाए और इन सब के होते हुए भी किसी का हमला हो जाए, नहीं, क्योंकि इसको फेल कोई कर ही नहीं सकता है। किसी को सिक्योरिटी निजाम नजर ही नहीं आता है, इसलिए कोई उसे फेल भी नहीं कर सकता, और वही सब पर गालिब है, और उसका जो निजाम है वो निजाम सब पर गालिब है। वो सिक्योरिटी मांगो ना अपने रब से। वही सिक्योरिटी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को दी, उन्हें बॉडी गार्ड की जरूरत पड़ी। वही सिक्योरिटी थी खुलफाए राशिदीन के पास। कितने बड़े खलीफा थे जानते हैं आप? कितने बड़े इलाकों के ये लोग जो है उस वक्त खिलाफत कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी आप जानते हैं। लेकिन वो खलीफा मस्जिद में आकर के मस्जिद की चटाई पर आराम से सो जाता था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, न उसके घर में न मस्जिद में, कहीं भी जाए तो कोई नहीं। यानी ये जो दुनिया की सिक्योरिटी होती है उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, उनको सिक्योरिटी थी तो उनके रब की सिक्योरिटी थी, और वो सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है कि उसको दुनिया का कोई निजाम फेल नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं हम उस सिक्योरिटी की तरफ जो है जाना चाहते हैं? वो सिक्योरिटी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्यों अपने रब की हिफाजत में जाना नहीं चाहते? मेरे ख्याल में आप सब लोग एक जबान होकर के मुझसे यही कहेंगे आज के इस दर्स के बाद कि हम सब की सब अपने रब की सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं और उससे सिक्योरिटी चाहते हैं, और उसके लिए बस ये है कि अपने रब के हो जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा और उसकी सारी सिक्योरिटी तुम्हें हासिल हो जाएगी। ये आज का दर्स था। इसी पर आज का ये दर्स, तफसीर का ये दर्स, तज़किये नफ्स की ये क्लास मेरे भाइयों यहीं पर खत्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।